Hello students, my today topic is again arithmetic progression. In the previous video I have completed up to question number 8. Now here I have question number 9 of exercise 5.2, and question number 9 is if the third term and ninth term of an AP are 4 and -8. क्या दिया इसमें हमें? थर्ड टर्म दी है और नाइन्थ टर्म दी है. वट वी आर टू फाइंड विच टर्म ऑफ एपी इज ज़ीरो. एक कौन सी टर्म जो है एपी की ज़ीरो होगी. तो हमें एपी नहीं पता, थर्ड टर्म पता है और नाइन्थ टर्म पता है. तो हम मान लेते हैं लेट nth term of AP is 0. So first of all you have to find out the value of A and D. Let A be the first term and D be the common difference. So we are given third term is 4, A3, it will be A plus 2D and it is 4, say it is number 1. Ninth term is -8, it will be A plus 8D, say it is number 2. With the help of these two equations, we will first of all find out the value of A and D. तो उसके लिए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट सेम हैं. A plus 2D माइनस A plus 8D, 4 minus -8, A plus 2D minus A minus 8D minus 12 plus 4 and 8 12, A cancel out, it is minus 6D equal to 12. D is, so the value of D is -2. Now find out the value of A. Put the value of D in equation 1. It will be A plus 2 into -2. So what is A? So A comes out to be 4 plus 4, 8. Now we have the value of A and D. So nth term जो है that is a 0. Using the relation an equals to A plus n minus 1 into D. An is 0, A is 8, D is -2. 8 इधर ले आओ, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. So n comes out to be 4 plus 1, that is 5. Therefore the fifth term of AP is 0. Now we have question number 10, and 10th question is the 17th term of AP exceeds the 10th term by 7. What we are to find common difference.
क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 17th टर्म इज मीन इक्वल टू, एक्सीड मीन ज़्यादा, A10 प्लस 7. इट इज़ A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D. इधर ले आओ. 16 minus 9 is 7, D 7, so D comes out to be 7 divided by 7, it is equal to 1. Now again 11th, which term of AP is 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. So here क्वेश्चन इज कि इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. तो फिर मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 132 more than 54th term. So from here find the value of A. D is 15 minus 3, that is 12. AN is mean equal to 54th term A plus 53D. इससे कितनी ज़्यादा है 132. इट इज़ A प्लस n माइनस 1, 132 A प्लस 53D. A कैंसल आउट. D वी हैव, D की वैल्यू है 12. 132 प्लस 53 इंटू 12, 132 n minus 1 into 12, or from here we can find the value of n. 768 over 12. So n comes out to be 64 plus 1, 65. So here we have question number 12. Two AP have common difference. Same. The difference between their hundredth term is 100. Find the difference between their 1000th term.
two APs are there which have same common difference. Let common difference between the two APs is, common difference same है, the difference between their 100th term, एक की 100 टर्म और दूसरे की 100 टर्म। मान लेते हैं लेट A1 is the 100th term of first AP and A1 is the first term of फर्स्ट AP, क्योंकि AP नहीं दी अज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह A2 इज द 100th term of second AP and A2 is the first term of second AP। तो ये मैंने मान लिया 100 टर्म है, ये मैंने मान लिया सेकंड की 100 टर्म है। A1 is the first term of the first AP, A2 is the first term of second AP, D is the common difference between the two, क्योंकि D दोनों में सेम है। तो दोनों का डिफरेंस, what is A1 which is the 100 term, it is A plus 99D। अब D क्योंकि सेम है, इसकी फर्स्ट टर्म है A1, ये नंबर 1। सिमिलरली A2 सेकेंड AP के लिए फार्मूला इज अगेन सेम। A1 की जगह अब क्या है फर्स्ट टर्म, सेकेंड AP के लिए A2। दोनों को माइनस करें क्योंकि डिफरेंस दिया है, A1 माइनस A2 100 टर्म का डिफरेंस आ गया। इट इज़ A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99, ये कैंसल, A1 माइनस A2, इसकी वैल्यू हमें दी है, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, सो A1 माइनस A2 कम्स आउट टू बी 100। अब निकालना हमें 1000th टर्म, A1000 फर्स्ट की, it will be A1 प्लस 99D, ये सेकेंड की आ गई 1000th टर्म। इट इज़ A2 प्लस 99D, तो दोनों का डिफरेंस माइनस A1 प्लस 999D माइनस इट अगेन कैंसल आउट इक्वल्स टू A1 माइनस A2, और A1 ने माइनस A2 की वैल्यू है। तो सिंपली याद रखो कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा। कब तक? जब तक कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। दिस विल चेंज ओनली व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज चेंज्ड। सिमिलरली वी हैव another question, that is question number 13. 13th is how many three digit numbers
are divisible by 7. How many 3-digit numbers are divisible by 7? क्या करना है हमें? 3 डिजिट के नंबर हों जो 7 से डिवाइड होते हों। तो पहला 7 का हम टेबल लिख लेते हैं ऐसे ही। ये सारे नंबर 2 डिजिट के आ रहे हैं। कहाँ तक? ये भी 2 डिजिट का नंबर। इसके आगे 105, ये आ गया 3 डिजिट का नंबर। अप टू कहाँ तक? अब 3 डिजिट के नंबर कहाँ तक आएंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? लेट अस सी। सो 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 are 105, 1112, कहाँ तक? नंबर 3 डिजिट के आने चाहिए। तो नंबर 3 डिजिट का फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम कि कितने नंबर होंगे? सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर देखते हैं कौन सा है। इट इज़ 999। और अगर 4 डिजिट वाला देखते हैं तो ये हमें चाहिए सिर्फ 3 डिजिट वाले नंबर। तो क्या करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमें यहाँ लास्ट वाला डिजिट मिल जाए। कौन सा आएगा? जो लास्ट वाला डिजिट आएगा 3 डिजिट वाला ही चाहिए यहाँ। तो 3 डिजिट वाला जो नंबर है 999 में से 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 2 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14 5। तो 999 में से ये नंबर माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 994। जब इसमें एक 7 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4 डिजिट का नंबर चला जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट डिजिट आ गया। तो हमें वैल्यू निकालनी है n की। a इज़ 105, d इज़ 112 माइनस 115 that is 7, and value of an is 994. So using the relation an equals to, it is 994, a is 105, n is to calculate, d is, इधर आके माइनस हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू 7, 9 माइनस 4 1, सॉरी 5 4, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8, 7 इधर डिवीज़न का है, मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
7 1. सॉरी, यहाँ 9 9 4, 14 माइनस 5 9, 8 8 89, 7 से डिवाइड करो, 12 4 9. So n minus 1 comes out to be 129. So value of n is 129 plus 1. So how many numbers are there? It is 130. So the 14th question is, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो 4 के कितने मल्टीपल हैं? मीन 4 का टेबल किसके बाद? 10 के बाद. 4 का टेबल 10 के बाद आएगा 12, 16. इसके बीच में लिखने हैं. 250 को 4 से डिवाइड करो, 2 बचेगा, 2 इसमें से माइनस कर दो. So last number will be 248. So A comes out to be 12, D comes out to be 4, and AN comes out to be 248. Again using the formula AN equals to A plus n minus 1 into D. AN is 248, A is 12, it is n minus 1, D is 4. 248 minus 12 equal to n minus 1 into 4. It is 236, n minus 1 into 4. 236 over 4. Divide करो, 59, n minus 1, n comes out to be 59 plus 1 equal to. So how many numbers are there? There are 60 numbers between 10 and 250 which are divisible by 4.